Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking a lecture of operation research. Right? So, uh, this is the lecture number 13. This is the lecture number 14th of operation research. In the previous lecture, we start the another new chapter of the operation research, which is the assignment problem. Right? So, in the previous lecture, we tried to understand the basics about the assignment problem and what is the difference between the transportation problem and assignment problem. And in the last series of the lecture, we tried to understand the one of the basic example of the assignment problem, which is based on the which method, right? I think I hope you all are getting that the different types of the transportations problems, right? I hope you very much aware about that technique. So in the previous lecture, we tried to understand that there are the four types of the basic models of assignment problems, which is the which is the interprogramming, integer programming models, then the transportations model, then the immunizations models, and fourth one, which is the Hungarian method. So based on the GTU syllabus, in the this semester we only focus on the Hungarian model. So based on the Hungarian model, I think I told you the history of the Hungarian models, right? How it is, who is invented the Hungarian models, and how we can solve the assignment problems with using the Hungarian models, right? So in last lecture we also tried to understand one basic example with the Hungarian methods. So in today's lecture we try to understand the another new example with using the Hungarian method. So this is the maximization transportations problem, which is same like the basic kind of the problem. Here you can see this is you can see you are having one square matrix, which is the 4 by 4 matrix, right? In the vertical side you can see the job, right, which is the ABCD, and in the horizontal side you can see the worker, which is the 1 2 3 4. So first we start with the first process to solve the example, which is we have to start the conversions of the row, right? We have to start the conversions of the row. So first you have to see that what is the least amount in the row number 1. So you can see that the 50, which is the least amount in the row number 1. So this 50 you have to subtract from the another row numbers, right? Same procedure you have to follow with another 3 rows, right? So the step number 1, which is completed, so which is the row, sorry, the step number 1, which is completed, which is the row subtracting procedure, which is the row minimizations, the first step of the assignment solutions based on the Hungarian method, which is the row conversions. As the row conversions is completed, you can see that if you have any kind of the column which has a no zero, which has a no zero, you have to identify the column in which there is a no zero. If you find any kind of the one or two column which has a no zero, right, now you have to focus on that column, you have to focus on that column. So here you can see that the column number 1 has a 2 0, column number 2 has a 1 0, column number 3, which is the C, has a no 0, right? Column number D has a 1 0. So only the column number C has a no 0. So the next step of to solve the assignment problem, which is the which is regarding, that is the row wise conversion, which is regarding the row wise conversion. So what how we can do the row wise conversion? So the rules which will be same, the rules which will be same, you have to identify the lowest amount of the that column. So here you can see that the 40, which is the lowest column, lowest number of that column number C.
So you have to subtract the 40 from another that column numbers. So based on that, now you can get the row. You can complete the first two step, the first which is the row conversion, second which is the column conversion. So here now you have a each and every row with the 0 and each and every column with the 0. Now the column crossing procedure will be start. Now for that, what you have to do, first you have to focus that in which column you have a maximum number of 0 and in which row you have a maximum number of 0. So based on that, here you can see that, so the column number 1 has a 2 0, column number 2 has a 1 0, column number 3 has a 1 0, column number 4 has a 1 0. Meanwhile same, the row number 1 has a 1, row 2 has a 2, row 3 has a 1 and row 4 has a 1. So based on that, you can see that the row number, so till that the procedure will be complete. So now you have to start the 0 allocations. You have to start the allocations of the 0. You have to try to allocate the 0 based in that manner. In each row and each column has a 1 0 and each row and each column has a 1 0. तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने जैसे ही एलोकेशन स्टार्ट किया, तो इस एलोकेशंस के अंदर आप देखोगे, तो मैंने फर्स्ट वाले कॉर्नर से ऐसे स्टार्ट किया, तो देखोगे कि मेरे जो फर्स्ट कॉलम थे ना, फर्स्ट कॉलम उसके अंदर 2 0 था, राइट. तो मैंने पहला 0 जो है उसको मार्क कर दिया 0, उस ब्लॉक को मैंने असाइन कर दिया, यानी मेरा अब रो नंबर 1 जो है वो यूटिलाइज हो चुका है और कॉलम नंबर 1 जो है यूटिलाइज हो चुका है. उसके अंदर जो भी 0 है ना, वो अब यूज़ नहीं कर सकते. फिर आप देखोगे तो मैं कॉलम नंबर 2 के अंदर चला गया, तो कॉलम नंबर 2 के अंदर जैसे ही चला गया, तो उसके अंदर सेकंड रो के अंदर मेरा 0 था, उसको मैंने मार्क कर दिया, राइट. अब सी के अंदर चला गया, राइट. तो सी के अंदर जो 0 था वो सेकंड रो के अंदर ही है, सेम टू सेम. और कॉलम नंबर जो 2 है उसमें भी सेम जो है वो सेकंड रो के अंदर ही था, तो वो हम लोग मार्क नहीं कर सकते. अब कॉलम नंबर 3 में उसके अलावा और कहीं पे जो है वो 0 नहीं है, राइट. फिर कॉलम नंबर में 4 में चला गया, तो उसके अंदर रो 4 के अंदर 0 था, उसको मैंने मार्क कर दिया. तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है आप देखोगे, तो मैं कैसे भी करके उसको क्रॉस करने की कोशिश करूँ, तो एक मेरा जो रो है, जो रो नंबर 3, वो ऐसे ही छूट जा रहा है, जिसमें 0 एलोकेशंस नहीं हो रहा है. और सेम प्रॉब्लम जो है वो मेरे कॉलम के साथ भी आ रहा है. जैसे आपका कॉलम नंबर 3 है, उसके अंदर 0 का एलोकेशंस नहीं हो रहा है, यानी ये जो प्रॉब्लम है ये अभी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है, राइट. अब इस कंडीशंस के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम क्रॉसिंग लाइन्स. अब हमें लाइन क्रॉसिंग जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा. अब लाइन क्रॉसिंग की कुछ रूल्स है, राइट. अब रूल्स के अंदर कैसे करें, तो अभी मैं आपको ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मेरे पास कॉलम नंबर 1 जिसके अंदर 2 0 थे, राइट, उसको मैंने मार्क कर दिया, राइट. सेम टाइम मेरा जो रो नंबर, जो मेरा दूसरा रो है उसके अंदर 2 0 थे, उसको मैंने मार्क कर दिया, राइट. अब सिमिलरली जो मेरा सेम रो नंबर 4 है उसके अंदर 1 0 है, तो उसको भी मैंने मार्क कर दिया. अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, अब जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ पे जो है वो आपको एडिशन करना पड़ेगा. और जो भी एलिमेंट ऐसे छूट गए जिसके ऊपर जो है वो लाइन क्रॉसिंग नहीं हुआ है, राइट, उसके ऊपर जो है वो आपका सब्सट्रैक्शंस होगा. यानी आप देखोगे कि
20 20 10, 0 0 10, 30 20 30। इसमें से सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? तो कि जिसके ऊपर लाइन नहीं घूमी है उसमें से सबसे छोटा नंबर है वो 10 है। तो 10 जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? उस जगह पे 10 को एडिशन करना पड़ेगा और बाकी की जगह से आपको सब्सट्रैक्शंस करना पड़ेगा। यानी आप देखोगे कि जहाँ पे 10 है, क्योंकि 10 जो छोटे सबसे छोटा नंबर था, जहाँ पे 10 है दोनों जगह पे अब 0 हो जाएगा, राइट। आप कॉलम नंबर जो 4 है आप देखोगे वहाँ पे दो, फर्स्ट रो में भी 10 है लास्ट में, और सेकंड रो में भी लास्ट में 10 है। तो वो जो है वो आपका अब क्रॉस हो जाएगा, राइट। अब वो जैसे ही क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्रॉस करने की, जो 10 थे उसके ऊपर मैंने क्रॉस करने की कोशिश की है, राइट। वो अब 0 हो गया। और जहाँ पे मेरा 70 था आप देखोगे कि कॉलम नंबर 1 और आपका रो लास्ट फोर्थ रो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था वहाँ पे 70 थे, 70 की जगह अब 80 हो गए, मैंने एडिशन कर दिया। तब उसके बाद मेरा फिर से एलोकेशन मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही मैंने एलोकेशन स्टार्ट किया तो एलोकेशन में करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे हर कॉलम और हर रो के अंदर जो है वो मुझे एक ज़ीरो चाहिए, राइट। अब जैसे ही मैंने एलोकेशन स्टार्ट किया तो फिर सेम प्रॉब्लम्स we are facing with this table also. Still we are not getting the zero, right? अभी जो है वो हर एक कॉलम और हर एक रो के अंदर जो है हमें ज़ीरो नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से लाइन क्रॉसिंग जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग लाइन क्रॉसिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसी लाइन को जो है क्रॉस करना है, ऐसी लाइन को जो है वो आपको क्रॉस करना है जिसके अंदर मैक्सिमम ज़ीरो है, जिसके अंदर जो है वो मैक्सिमम ज़ीरो होने चाहिए, राइट। और उसके अलावा जिस नंबर के अंदर, जिस सेल के ऊपर जो है वो लाइन क्रॉसिंग नहीं होगा, लाइन क्रॉसिंग नहीं होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है? जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वहाँ पे आपको क्या करना है? एडिशन करना है। और जिस नंबर के ऊपर से लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको जो है उसमें से जो बच गए उसमें से सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको इंटरसेक्ट के पॉइंट के ऊपर एडिशन करना है, बाकी की जगह से माइनस करना है। अब आप जैसे ही करोगे तो आपको अब ये फिगर जो है वो ये जो टेबल है वो आपको लास्ट में मिलेगा। अब आपको जैसे ही वो लास्ट में ये जो है वो टेबल आपको मिलेगा तो उसके अंदर फिर से आपको एलोकेशन को स्टार्ट करना है। आप जैसे ही आप एलोकेशन करोगे तो आपको हर एक कॉलम और हर एक रो के अंदर जो है वो एलोकेशन स्टार्ट करना है। तो उस हिसाब से मैं ज़ीरो के ऊपर एलोकेशन स्टार्ट करूँगा। तो अब इस कंडीशन के ऊपर आप देखोगे तो मेरे इस टेबल के अंदर हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर ज़ीरो जो है वो असाइन हो रहे हैं, राइट। अब जहाँ पे भी ज़ीरो असाइन हुए हैं दैट इज़ दी, यानी आपका जैसे आपका हर एक कॉलम और हर एक रो के अंदर जैसे एक एक ज़ीरो जो है वो असाइन हो गया, तो वो आपका जो है वो ऑप्टिमम असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल चुका है। और आपने जहाँ पे असाइन किया है, जहाँ पे आपने स्क्वायर किया है, उसको आपको फाइनल जो क्वेश्चन फिगर है ना, क्वेश्चन फिगर, वहाँ पे क्या नंबर था वो नंबर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब जैसे ही आप वो नंबर आइडेंटिफाई करोगे तो उसके हिसाब से जो वहाँ पे जो नंबर एक्चुअल फिगर था, जैसे आपका मेरा कॉलम नंबर में कॉलम 1 में जो मेरा 3 के अंदर मैंने 0 असाइन किया तो ओरिजिनल में वहाँ पे क्या था? तो ओरिजिनल में वहाँ पे 60 थे। जैसे कॉलम नंबर 2 के अंदर मैंने रो 4 के अंदर जो है वो मार्क किया लास्ट वाला, राइट। उसके अंदर ओरिजिनली कौन सा क्वेश्चन के अंदर कौन सा नंबर था? तो कि 90 नंबर है। इस तरीके से आपने जैसे जिस जगह पे मार्क किया है 4 0, वो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन वाला जो आपके पास टेबल है उसके अंदर से वो जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करके आपको ऑप्टिमम कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करके देना है, उसको प्लस करना है। और वो आप लास्ट में बता सकते हैं कि दिस असाइनमेंट कॉस्ट इज़ विल बी, यहाँ पे आपको 230 रुपये जो है वो असाइनमेंट कॉस्ट आपको लग रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर 1. Now we can start
the another problem of ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम. सो ये जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी जीटीयू में भी एक बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. द एबीसी कंपनी जो है उसके हिसाब से wants to find out the minimum time which is required to complete the 4 tasks by available 4 worker within him, so that can take the another order from the other party. The following matrix which is given the time in hours for each worker for each jobs. तो यहाँ पे जो है वो हमें एक टेबल दिया गया है जो 4x4 मैट्रिक्स का टेबल है, जिसके अंदर जो है वो जॉब वर्सेस वर्कर्स है. सो एबीसी जो है वो जॉब्स है, उसके सामने वर्कर है, राइट. आप देखोगे तो ये जो है वो बैलेंस तरीके का जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है. तो सबसे पहले जो ये हमारा काम वहाँ से जहाँ से स्टार्ट होगा, तो उस जगह से स्टार्ट होगा कि फर्स्ट अपना स्टेप बेस्ड ऑन द हंगेरियन मेथड, ये जो हमारा स्टेप होगा, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द रो कन्वर्जेशंस ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स. तो आपको सारे जो 4 रो दिए गए उसमें से सबसे छोटा जो नंबर है उस रो का, उसको बाकी के 3 नंबर में से माइनस करना है, राइट. तो ये जो है वो आपका स्टेप नंबर 1 होगा. ये आपके सामने दिख रहा है कि जैसे ऊपर वाले फिगर में, ऊपर वाले फर्स्ट आप रो के अंदर देखोगे कि जो 10 था वो सबसे छोटा नंबर था, राइट. जो 10 था वो सबसे छोटा नंबर था. तो उस हिसाब से द 10 विच इज़ द लोएस्ट नंबर इन द रो नंबर 1. सो 10 को बाकी के सारे जो है 10 में से 10 तो माइनस 10 में से 10 तो 0 हो जाएंगे, और बाकी के सारे 3 में से 10 को माइनस करना है. तो इस हिसाब से आपका नया रो जो नंबर 1 बन गया, उस हिसाब से रो नंबर 2, 3, 4. अब आपको जैसे स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है तो स्टेप 2 कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉलम दैट हैज़ नो ज़ीरो. तो आप इस टेबल के अंदर स्टेप नंबर 1 के सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो स्टेप नंबर 1 के सॉल्यूशंस के अंदर जो है मुझे कॉलम नंबर 1 में 2 ज़ीरो दिख रहा है, कॉलम 2 में 1 ज़ीरो दिख रहा है, कॉलम 3 के अंदर 1 ज़ीरो दिख रहा है, पर कॉलम 4 जो है उसके अंदर ज़ीरो नहीं है. तो उसको अब कॉलम कन्वर्जन्स के लिए हमें जाना होगा. इस कॉलम में सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको आपको बाकी के सारे नंबर में से जो है वो माइनस करना है. यानी सबसे छोटा जो नंबर है दैट इज़ दी 1, आपको एक जो है बाकी सारे नंबर में से आपको माइनस करना है. तो ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी. अब जैसे ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक बार ज़ीरो का एलोकेशन स्टार्ट करना है. आपको हर एक कॉलम और हर एक रो के अंदर एक ही ज़ीरो एलोकेट हो, इस हिसाब से आपको ट्राई करना है. तो आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए कि पहले आप फोकस कहाँ की करोगे, जहाँ पे एक ही ज़ीरो है, राइट. तो ये चीज़ आप देखो कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल नहीं हो सकती. ये चीज़ पॉसिबल नहीं होने के चांसेस के पीछे, यानी आप देखोगे कि 2 रो ऐसी है और कॉलम वाइज आप देखोगे तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 उसमें एक ही जगह पे ज़ीरो है, दैट इज़ दी रो नंबर 1. उसी एक ही 2 अलग अलग कॉलम है बी और डी, पर उसके अंदर जो ज़ीरो है वो वहाँ पे रो नंबर 1 में ही है. तो एलोकेशंस हो नहीं सकते. तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, तो आपको अब करना है इसके अंदर क्रॉसिंग करना है, लाइन क्रॉसिंग. अब लाइन क्रॉसिंग कैसे करोगे, तो जिसके अंदर मैक्सिमम ज़ीरो है उसका एलोकेशंस आपको उस लाइन को क्रॉस करना है. तो मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे कि जो मेरा कॉलम नंबर 1 था उसको मैंने क्रॉस कर दिया, राइट. उसके अंदर 2 ज़ीरो थे, राइट. अब मेरा रो नंबर 1 था, रो नंबर 1 जिसके अंदर 2 ज़ीरो थे उसको क्रॉस कर दिया. अब मेरा कॉलम नंबर 3 यानी सी, उसको मैंने क्रॉस कर दिया. अब मेरे पास बचेंगे कौन से, यानी 12, 2, 8, जिसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं हुआ है. आप देखोगे जिसके ऊपर क्रॉसिंग नहीं हुआ है, तो आप 12 बचेंगे, 2 बचेंगे, 8 बचेंगे, 4 बचेंगे, 3 बचेंगे, 1 बचेंगे. तो अब इंटरसेक्ट कहाँ पे हुआ, यानी आप देखोगे कि 14 नंबर जो है ना मेरा,
जो टॉप वाला कॉर्नर है वहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हुई थी। तो इस बचे हुए नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो 14 के अंदर जो है वो 1 प्लस होगा और बाकी सारे नंबर के अंदर 1 जो है वो माइनस होगा। तो इस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 14 के अंदर जो है वो मैं 1 प्लस करने की कोशिश करूँगा और लास्ट वाला 1 जो है उसको अंदर मैं माइनस करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखोगे कि एक की जगह जो है वो मेरा अब 0 हो चुका है और 14 की जगह पे मेरा 15 हो चुका है। अब फिर से मुझे 0 का एलोकेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे तो आपको 0 एलोकेट करना है, तो आप 0 कहाँ से एलोकेट करोगे? तो जिसके अंदर एक ही 0 है वहाँ पहले से हम लोग स्टार्ट कर दी। कॉलम नंबर सी के अंदर जो है एक ही 0 है, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। यानी अब मेरा कॉलम 3 और रो 2 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुका है, राइट। फिर मेरा कॉलम नंबर बी, उसके अंदर टॉप के अंदर जो है मेरा 0 था फर्स्ट सेल के अंदर, तो उसको मैंने 0 मार्क कर दिया। यानी अब मेरा रो 1 और रो 2 कंप्लीट हो चुका है। अब रो 3 के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? यानी अब चीज़ क्या हो चुकी है कि मेरे कॉलम 2 और 3 ख़त्म हो चुके हैं और उस हिसाब से मेरा जो है वो रो जो है वो रो नंबर 1 और 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड 0 में मार्क करूंगा कॉलम नंबर ए के अंदर जो 3 नंबर की रो है वहाँ पे। यानी अब मेरा रो 3 और कॉलम 1 ऑक्यूपाई हो चुका है और लास्ट में मेरा जो फोर्थ 0 है वो मैं अप्लाई करूँगा कॉलम नंबर डी के अंदर, लास्ट के अंदर। यानी अब आप देखोगे तो मेरे सारे 0 जो है वो एक ही जगह पे सारे अलग अलग जो है उस रो और कॉलम के अंदर जो है वो मैंने मार्क किए हैं। तो आप देखोगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको सेम चीज़ वही दिखेगी। तो ये है जो सॉल्यूशन है जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं जो डिस्कस कर रहा था आपके साथ, वहीं एग्जैक्ट वहीं लोकेशन के ऊपर जो है वो वहाँ पे 0 को एलोकेट करने की कोशिश की है, राइट। और आपको जहाँ पे 0 असाइन किए हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में, जहाँ पे 0 जो है वो असाइन यानी कि जिसके ऊपर स्क्वायर किया है, वो ओरिजिनली क्वेश्चन के अंदर उस जगह पे कौन सा नंबर था? ओरिजिनली क्वेश्चंस के अंदर उस जगह पे कौन सा नंबर था? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको लिख देना है 1 2 3 4, राइट। आपको लिख देना है 1 2 3 4। तो 1 के अंदर आपने कहाँ पे किया? तो बी के अंदर। 2 के अंदर आपने कहाँ पे किया? सी के अंदर। 3 के अंदर आपने कहाँ पे किया? ए। और 4 के अंदर आपने डी। तो 1B में क्या चीज़ थी? तो कि 1B में आपको वहाँ पे आगे जाके देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। 2C में क्या था वो देखना पड़ेगा। 3A में क्या था वो देखना पड़ेगा। 4D में क्या था वो देखना पड़ेगा। यानी आपका ओरिजिनल वहाँ से नंबर पता चलेगा, उसके हिसाब से आपका जो है वो ऑप्टिमम कॉस्ट जो है असाइनमेंट कॉस्ट वो 48 रुपीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। वो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट। सो ये दूसरा एग्जाम्पल आज हमने कोशिश की है कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ, राइट। और एक एग्जाम्पल को कोशिश करने की सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक एग्जाम्पल दिख रहा है। यानी ये जो है वो 5x5 मैट्रिक्स है, राइट। ये जो मैट्रिक्स है वो 5x5 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करने की कोशिश करना है, यानी बैलेंस मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला जो स्टेप हो जाएगा हमारा, वो स्टेप क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द रो वाइज कन्वर्जेंस। रो वाइज कन्वर्जेंस के अंदर जो आपको रो 1 2 3 4 5, यानी पहले रो के अंदर सबसे मिनिमम कौन सा है? 50। तो उसको बाकी के उस रो के नंबर में से माइनस करना है। यानी 100 में से 50 जाएंगे तो 50, 50 में से 50 जाएंगे तो 0, 90 में से 50 जाएंगे तो 40। इस तरीके के आपको सारे रो जो है उसमें सबसे छोटा नंबर हो उसको आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो है वो बाकी के सारे नंबर में से माइनस करके अब रो वाइज पूरा टेबल आपको कन्वर्ट करना है। जैसे ही मेरा रो वाइज टेबल कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरा स्टेप नंबर 2 जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर स्टेप नंबर 2 कौन सा बचेगा? यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉलम in which there is no zero, राइट।
तो आप देखोगे तो कॉलम नंबर 1 के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है, 2 के अंदर है, 3 के अंदर है, 4 के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है और 5 के अंदर कोई ज़ीरो नहीं है। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, इसके अंदर जो है वो एक भी ज़ीरो नहीं है, राइट। आपका अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस प्रॉब्लम के अंदर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका, यू हैव टू कन्वर्ट दी रो वाइज कॉलम वाइज कन्वर्जन, यानी ये 3 जो है उसके अंदर कॉलम वाइज कन्वर्जन होगा। बाकी सारे प्रॉब्लम के अंदर कॉलम वाइज कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि उस कॉलम के अंदर कॉलम नंबर 2 और 3 के अंदर ऑलरेडी ज़ीरो है ही। तो अब आपका नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा कॉलम नंबर ट्रांसफॉर्मेशंस का। जैसे वो कॉलम के अंदर सबसे छोटा नंबर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको बाकी के सारे नंबर में से माइनस करना है, राइट। जैसे ये स्टेप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आपको एलोकेशन जो है वो स्टार्ट करना है। हर एक ज़ीरो के अंदर हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर इस तरीके को ज़ीरो को असाइन करना है, जैसे एक कॉलम और एक रो के अंदर एक ही ज़ीरो असाइन किया हुआ हो, डुप्लीकेशंस होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के असाइन करने की कोशिश करेंगे तो उस तरीके से यहाँ आपको दिख रहा है कि ज़ीरो जो है वो असाइन नहीं हो पा रहा है। तो अब आपका प्रोसेस जो है वो क्या चीज़ हो जाएगा, आपको प्रोसेस यानी इटरेशन 1 स्टार्ट करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के अंदर। इटरेशन 1 के अंदर क्या चीज़ होगी, उस तरीके के आपको लाइन क्रॉसिंग जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको इस तरीके की रो और इस तरीके की कॉलम जो है वो चूज करनी पड़ेगी जिसके अंदर मैक्सिमम ज़ीरो हो। तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। इस हिसाब से एक मेरा कॉलम नंबर जो 2 है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, एक मेरा रो नंबर 3 है जिसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ीरो दिख रहा है। तो उस ज़ीरो को जो है वो हम लोग कट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मेरा रो 3 हो गया, कॉलम 2 हो गया, उसके बाद मेरा हो जाएगा कॉलम 3 मेरा हो जाएगा। उस हिसाब से सारे जो ज़ीरो है वो अब कट हो चुके हैं। अब जो नंबर अभी बच चुके हैं जिसके ऊपर जो है वो लाइन क्रॉसिंग नहीं हुआ है, उसमें से आपको सबसे छोटा जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको कहाँ पे ऐड करना है, उसको जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो इंटरसेक्ट हुई थी वहाँ पे आपको जो है वो ऐड करना है इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर, और बाकी के सारे बचे हुए नंबर में से आपको माइनस करना है। तो इस तरह के आप देखोगे मैंने लाइन जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की है। तो मैंने क्या किया था कि देखो मैंने जो चीज़ करने की कोशिश की है, मैंने कॉलम नंबर 2 को क्रॉस कर दिया, रो नंबर 3 को क्रॉस कर दिया और रो नंबर 2 के अंदर एक ज़ीरो था इसलिए क्रॉस कर दिया। अब बचे हुए जो नंबर है उसमें से मेरे जो नंबर बचे हैं उसमें से 40, 40, 110, 30, 80, 30, 60, 30, 40, 80, 110 और 10। तो इसमें से बचे हुए नंबर में से 10 जो है मेरा सबसे छोटा नंबर है। तो 10 को मैं इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर ऐड करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, दो जगह पे। आप देखिए कि वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम नंबर 2 के अंदर है और हॉरिजॉन्टल दो लाइन जो है 2 और 3, यानी एक पॉइंट है मेरा 30 और एक 0, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर मुझे 10 जो है वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे और बाकी की सारे जगह से मुझे 10 जो है वो माइनस करने पड़ेंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो मैंने यही चीज़ की। आप देखोगे 30 की जगह पे मैंने अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अब 40 आपको दिख रहा है और जहाँ पे 0 था वहाँ पे मैंने 10 ऐड किया। जैसे ये एडिशंस हो गए तो उसके बाद फिर से मुझे एलोकेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर एलोकेशन किया तो हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर फिर भी 0 जो है वो असाइन नहीं हो रहा है। तो अब क्या चीज़ करनी पड़ेगी, अब फिर से मुझे लाइन क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने लाइन क्रॉसिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे जैसे भी हो इस तरीके से मिनिमम लाइन को यूज़ करके मैक्सिमम 0 को कवर करना है, राइट। रूल्स क्या है, लाइन आपको कम सिलेक्ट करनी है, कम से कम लाइन जो है वो यूज़ करनी है और कम से कम लाइन यूज़ करके सारे 0 को कवर कैसे हो जाए उस तरीके को उसको मार्क करना है, उसको क्रॉस करना है।
तो मेरा कॉलम नंबर 2 जिसके अंदर 3 जीरो थे उसको मैंने क्रॉस कर दिया। फिर रो नंबर 2, रो नंबर 3 और एक मेरा बचा है रो नंबर 5, उसको मैंने क्रॉसिंग कर लिया। अब आप देखोगे इसके अंदर इंटरसेक्टिंग कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो कॉलम 2 देखिए, कॉलम 2 और रो 2, 3 और 5 जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्टिंग हो रही है वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा और बाकी की जगह पे माइनस करना पड़ेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो बचे हुए नंबर है, यानी आप देखोगे 30, 100, 20, 70, 30, 50, 20, ये जो बचे हुए नंबर उसमें से 20 जो है वो सबसे छोटा है, तो 20 को माइनस करना पड़ेगा बाकी के सारे बचे हुए नंबर में से, और जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुए वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब जहाँ पे आप ऐड करोगे तो जहाँ 20 की जगह था वो वहाँ पे 0 हो गया। अब फिर से आपको 0 को एलोकेशन करने का स्टार्ट करना है। आप जैसे ही 0 को एलोकेशन करोगे तो फिर एक बार हर रो और हर कॉलम के अंदर एक ही 0 असाइन हो उस तरीके के आपको असाइनमेंट करना है। अब फिर भी ये चीज़ जो है वहाँ पे हो नहीं रहा है, राइट। अब फिर से आपको लाइन क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप लाइन क्रॉसिंग स्टार्ट करोगे तो मेरा कॉलम नंबर 2 उसको मैंने क्रॉस किया, फिर मेरे सेम जो रो थे, रो नंबर 2, 3 और 5 उसको मैंने क्रॉस कर दिया जिसके अंदर 0 थे, राइट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको ऐड करना है, एडिशन करना है, यानी इंटरसेक्टिंग मेरा बन रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहाँ पे, तो रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 5 के अंदर। तो और बचे हुए जो नंबर है वो मेरे उसमें से सबसे छोटा जो नंबर मुझे अभी दिख रहा है वो 10 नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है। तो 10 जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अंदर मुझे ऐड करना है, बाकी की जगह पे जो बचे हुए नंबर में से उसको माइनस करना है। तो जैसे ही वो चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि उस चीज़ को मैंने फॉलो करने की कोशिश की। अब मेरे फिर से 0 को एलोकेशन करने का स्टार्ट किया। जैसे ही मैं 0 एलोकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो अब सारे रो और सारे कॉलम के अंदर जो है वो मुझे 0 जो है वो असाइन हो रहा है। सो दिस इज योर ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। अब आपको 1, 2, 3, 4, 5 इतना लिख देना है। अब आप देखोगे कि 1 के अंदर आपने कहाँ पे रोमन के अंदर एलोकेशन किया 0, 1, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4, 4 के अंदर 2, 5 के अंदर 5। यानी ये जहाँ पे एलोकेशंस हुआ वो ओरिजिनली जो आपका जो क्वेश्चंस था उसके अंदर ये कौन से नंबर थे जहाँ पे 0 एलोकेशंस हुआ है उसको आपको लिख देना है और उसको प्लस करना है सबको। आप प्लस करोगे तो आपका टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट जो है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो टोटल आपका फाइंड आउट जो ऑप्टिमम कॉस्ट हो रहा है वो 390 रुपए जो है वो आपका कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट जो है वो बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। यही 3 एग्जाम्पल जो है वो आपको घर पे एक बार अपने खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कैसे लाइन क्रॉसिंग करते हैं वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग इसी प्रॉब्लम को जो है वो कर फिर से कोशिश करेंगे। मैं ऐसा हो अगर ज़्यादा स्टूडेंट को ऐसा दिक्कत आ रही है तो फिर मैं एक बार फिर को आपको बुक में से सॉल्व करके कोशिश करूँगा, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक लेक्चर है वो गूगल मीट से सेम टाइम आपको लेने की कोशिश करूँगा, जिससे अगर आप मेरे सामने मैं आपको सॉल्व करते करते जो एग्जाम्पल पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। पर अगर ये चीज़ तभी करनी है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शंस में अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में जाके ये चीज़ आपको लिख देनी है, नीड मोर प्रैक्टिस विथ ऑनलाइन लेक्चर्स, राइट। नीड मोर प्रैक्टिस विद दी ऑनलाइन लेक्चर। तो फिर मैं कल का लेक्चर है वो मीट से लेने की कोशिश करूंगा और आपको एट ए टाइम में कैसे कैसे उसको लाइन क्रॉसिंग कर रहा हूँ वो आपको वहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ गिव योर सजेशंस, गिव योर इनपुट्स इन दी यूट्यूब कमेंट सेक्शंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी असाइनमेंट प्रॉब्लम। सो